Okay, welcome students. So we are going to discuss the very important practical of the class 11th. Okay, now we are going to discuss about how to use the vernier calipers. This is the first practical, vernier calipers. Okay, vernier calipers you may be defined as there are the two scale in vernier calipers. This is the first scale, this is simple linear scale. Okay, and there is a second scale. Okay, this is a second scale which is called the vernier scale. There are the two scale here. Okay, simple scale is a basic scale like your the ordinary scale like that. This is the vernier scale. So your target to find out the reading of the first line of the vernier scale. This is your target. Okay, first line. There are the 10 lines in given in vernier scale in downward. You may be able to see here 10 lines. Okay, the first line is the very important. First line of the vernier scale. So first of all, you have to be check that there is any error or not. Okay, so first when the two mouth of this instrument is connected, so you just be think that there should be no error. How can you think that there is no error? When these two mouths are connected, then the first line of the vernier scale should be lie just over the zero. Okay, the simple scale 0 should be lie over the first line of the vernier scale. ठीक है ना, वर्नियर स्केल की पहली लाइन मेन स्केल की 0 पर अगर बिल्कुल टैली कर जाए, जब ये बिल्कुल आपस में दोनों टच हो, इसका मतलब कोई एरर नहीं है. लेकिन अगर मान लेते हैं कि इफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल गिव द सम रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग, एडवांस रीडिंग, ओके, सो इट विल बी कॉल्ड द पॉजिटिव एरर. व्हेन द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज द बिलो द 0, ओके, सो दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव एरर. एंड इट इज वेरी क्लियर दैट द एडवांस रीडिंग मस्ट बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्विंग रीडिंग. द एडवांस मतलब कि जो एक्स्ट्रा रीडिंग होगी ऑब्जर्विंग रीडिंग से वो उसको सेपरेट करेंगे और जो डिले रीडिंग होगा उसको हम ऐड करते हैं. ठीक है, नाउ आवर टारगेट टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स. ओके, वर्नियर कैलिपर्स इसका डायमीटर निकालना है. कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल है. पहले इसकी हम लिस्ट काउंट की बात करें तो सिंपल स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है, द लिस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल इज द 1 मिलीमीटर. यू हैव टू बी मेजर द मिनिमम रीडिंग फ्रॉम द सिंपल स्केल इज द 1 millimeter. But with the help of vernier calipers, you will be measure the 0.1 millimeter. So it is the more precise as compared to the simple scale. सिंपल स्केल से आप मिलीमीटर में मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन इसकी मदद से आप मिलीमीटर का 10वां हिस्सा यानी 1/10 आप मेजरमेंट कर सकते हो, 1/10 ऑफ द मिलीमीटर. सो लिस्ट काउंट ऑफ द दिस वर्नियर स्केल इज द 0.1 millimeter. 0.1 millimeter. How can we measure the 0.1 millimeter? It is very clear. So first of all, we take the object which diameter we have to find out and keep in over their mouth, and we have already checked that there is no error in this device. Okay, this is an error free device. We keep the object. Okay, now you can be check out the what is the reading. So it is showing that the first line of the vernier scale showing that it is the just minute 2.9 in centimeter. 2.9, the first line is come along with the just straight line 2.9. so please write down 2.9 centimeter. 2.9 centimeter. Okay, and now we are able to see that its fourth line is the just equivalent, it's tally to the just upper line. वर्नियर स्केल की फोर्थ लाइन सिंपल स्केल की एक लाइन से बिल्कुल आमने सामने सीधा है, टैली कर रहा है. तो अब इसकी एग्जैक्ट रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2.9. ओके, और इसमें हम इसका जो फोर्थ रीडिंग आखिरी वाला बता रहे, फोर्थ लाइन बिल्कुल टैली कर रहा है, तो फोर्थ लाइन की रीडिंग इसमें हम ऐड कर देंगे. ये हो जाएगा 2.94 सेंटीमीटर. 2.94 सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ द दिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. Our first practical is over right now. Okay, now you can able to the you may be able to the find out the volume and surface of the this sphere by measuring their radius. Okay, 4/3 pi r cube volume will become and 4 pi r square will circumference, that is surface area will become of the spherical object. It is very easy practical. Okay, second क्या है कि आपको एक ये फ्लक्स का इंटरनल डायमीटर नापना है. तो इंटरनल डायमीटर नापने के लिए हम इसे ऊपर वाले डिवाइस का यूज़ करते हैं. इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे, और फिर इसको हम चेक कर लेंगे. ये इसमें इससे टच पे आ गया, ठीक. और अब हम इसकी रीडिंग यहाँ से ले लेंगे. जैसे कि यहाँ पर बहुत ही आसानी से मैं देख सकता हूँ कि इसमें शो क्या कर रहा है. आई थिंक इट इज़ द 5
5.1 ओके 5.1 इज द रीडिंग ऑफ द लीनियर स्केल। लीनियर स्केल की रीडिंग है 5.1 सेंटीमीटर। इसकी रीडिंग कैसे हमने पता चला? क्योंकि वर्नियर स्केल की पहली वाली लाइन जो है वो 5.1 पर है। अब हम देखते हैं कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है। तो इसकी रीडिंग का अगर मैं बात करूं तो ये चला जा रहा है हमारा ओके 7th लाइन, बिल्कुल ऊपर वाली एक लाइन से टैली कर रहा है। तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी? 5.17 सेंटीमीटर। ओके, इट इज़ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द दिस फ्लास्क। ओके, इट इज़ आवर फर्स्ट प्रेक्टिकल। फर्स्ट प्रेक्टिकल आपका यहीं पर ओवर हो जाता है, ठीक है ना। आप कोई भी डिवाइस का इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए ऊपर का आप ये वर्ड जिसका यूज़ करेंगे, इसकी मदद से आप डायमीटर निकाल सकते हैं। डेप्थ निकालने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ निकाल सकते हैं रख करके, ठीक है ना। जैसे इसका डेप्थ निकालना है तो इसको हम ऐसे इसका हम डेप्थ निकालेंगे और रीडिंग लेने का तरीका वही है, ठीक है ना, इसी से। यानी कि वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन किस पर टैली कर रही है, हमें इसी को ध्यान देना है। तो लीनियर स्केल की फर्स्ट लाइन से हम पहले इस मेन स्केल की रीडिंग निकालेंगे और फिर वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर की कौन सी लाइन से टैली कर रही है उससे हम डेसिमल के बाद वाली सेकेंड डिजिट सेंटीमीटर में हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा एक सिंपल स्केल वर्नियर कैलिपर्स का यही हमारा प्रैक्टिकल था, बिल्कुल ईजी प्रैक्टिकल। नेक्स्ट प्रैक्टिकल हमारे पास है स्क्रू गॉज का। स्क्रू गॉज इज़ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल। ये क्या करता है भाई, इसमें भी दो स्केल होती है। इसमें भी एक लीनियर स्केल है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये एक लीनियर स्केल है और एक ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है ना। तो लीनियर स्केल के लिस्ट काउंट तो 1 मिलीमीटर है, यानी कि 1 मिलीमीटर पर इस पर लाइन खींचे हुए हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर लीनियर स्केल इज द 1 millimeter and this is circular scale of the screw gauge, okay, and there is a given the 100 lines. 100 lines is given here, okay. So you may see that when the 100 line will be round up, then 1 millimeter it will be shift. So the pitch of the screw gauge is the 1 millimeter and 100 lines is given here in circular scale. So it is very easy to say that जब इसकी 100 लाइन्स इसकी पास होंगी तो ये 1 मिलीमीटर शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब कि 1 मिलीमीटर का ये 100 पार्ट्स बता देगा, यानी कि 1/100 मिलीमीटर इसकी लिस्ट काउंट होगी, मतलब 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट होगी। 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट होगी। क्लियर है क्या? अब बड़े आराम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका हम एरर चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को बिल्कुल आपस में इसे हम टच करेंगे और एक बार इस पर आवाज आएगी, बस। अब फिर देखेंगे कि इसका जीरो, लीनियर स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल के जीरो पर बिल्कुल टैली कर रहा है कि नहीं। अगर टैली कर रहा है तो कोई एरर नहीं है, लेकिन इसमें अगर एक वैल्यू और 80 के बीच में, मतलब कि 95 पर है ये, ठीक है ना। कैसे मैंने कहा, देखो इसमें ये जीरो ये और इसको बिल्कुल सीधे में आ रहा है 80 और 90 के बीच में, यानी कि 95 पर आ रहा है। तो ये जो 95 है ये डिले है, पीछे है, मतलब ये निगेटिव एरर है। और जीरो से 95 नहीं 85, यस 85 ये नीचे है। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। 80 और 90 के बीच में ये वाली लाइन जा रही है, इसका मतलब कि ये 85 पर है, जीरो से नीचे। तो जीरो से नीचे 85 का मतलब कि 15, 100 से 15 आप पीछे जा रहे हो। नहीं आई बात समझ में? 100 से आप अगर 15 पीछे जाओगे तभी तो 85 पर पहुंचोगे ना। तो ये इसका 85 जो है ये इसका निगेटिव एरर है। क्या ये इट्स ए नेगेटिव एरर। सो प्लीज राइट डाउन, इट्स ए नेगेटिव एरर। 15 ओनली 85 पर है, मतलब 15। अगर ये 85 पर है तो मतलब कि ये 15 पर है। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। तो ये 15 पर है। अब इसमें हमें क्या करना है, चेक कर लेते हैं। इसमें हमें एक पेपर पिन है ये, ठीक है ना, और इस पेपर पिन का डायमीटर निकालना है। इस पेपर पिन का डायमीटर निकालना है तो बड़ा ही आसान। इस पेपर पिन को हमने यहाँ पे रखा और इसको ऐसे किया, मिलाया इसको, और एक बार आवाज़ आ गई, ठीक। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें अब इसकी जो डायमीटर आ रही है, इसमें मुझे एक लाइन तो दिख रहा है पहली। तो ये 1 मिलीमीटर तो फिक्स हो गया, 1 मिलीमीटर। और उसके बाद ये आपका जो लाइन जा रही है सीधे 65 पर जा रही है, नहीं सॉरी 60 पर जा रही है। तो 1.60 इसका डायमीटर है। ऑब्जर्विंग रीडिंग है ये, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया 1.60। अब इस 1.60 में जो निगेटिव एरर इसको हम ऐड कर देंगे। ओके, 15 था ना, 15 था, तो ये हो जाएगा 1.1
1.75 ना, 1.75 विल बी डायमीटर ऑफ द दिस नीडल। ओके, अब इसका रेडियस आप निकालना चाहो तो रेडियस भी निकाल सकते हो। ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल था, ठीक है। इसके अलावा एक प्रैक्टिकल इसमें हम और भी कर सकते हैं। हमें पेपर शीट का थिकनेस निकालना होता है, तो पेपर शीट का थिकनेस निकालना बड़ा ही आसान। हम इसमें से लगभग 10 शीट या 20 शीट ले सकते हैं। सिंगल शीट का निकल सकता है, बिल्कुल सिंगल शीट का भी निकल जाएगा, लेकिन रीडिंग इतनी फाइन आएगी, इतनी छोटी रीडिंग आएगी कि ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हम 10 शीट ले लेते हैं। 10 शीट की रीडिंग इसकी हम निकाल लेते हैं पहले, और फिर जो भी वैल्यू आएगी 10 से डिवाइड कर लेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको हम इसमें लगा देते हैं। और बस एक बार आवाज़ आनी चाहिए। हो गया। अब आप इसको आराम से बाहर खींच करके इसकी रीडिंग चेक कर सकते हो। और गौर से अगर हम देखें तो इसमें एक लाइन तो साफ क्लियर दिख रहा है 1, और उसके बाद ये 70 पर, यानी कि 1.70 सेंटीमीटर में है। ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ 1.70, ये इसकी ऑब्जर्विंग वैल्यू है। नाउ वी विल बी एट द एरर, नेगेटिव एरर इन दिस वैल्यू। ओके, सो 1.70 प्लस 15, हाउ मच विल कम? 1.85। 1.85 is the thickness of the 10 sheet. 10 sheet. So what will be the value of the 1 sheet? So divide by 10. Okay. So 0.185. 0.185 in centimeter. Okay. So it's very clear then. Is there any doubt? Then you may be asked. Is there any doubt? Okay. So this is the second practical. There are the two observations in second practical, and in first practical there was also two observation. Diameter इसका निकाला मैंने और इसका इंटरनल का निकाला। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है ये स्फेरोमीटर का। स्फेरोमीटर इज जस्ट सिमिलर टू द स्क्रू गर्ज। स्क्रू गर्ज की तरह ही है ये। इसकी भी बिल्कुल कहानी वही है। इसमें भी एक ये लीनियर स्केल है और एक सर्कुलर स्केल, और इसके सर्कुलर स्केल की भी वैल्यू 100 लाइन्स है। 100 लाइन मतलब कि ये भी, इसकी भी लिस्ट काउंट 0.01 mm ही है, इसकी भी लिस्ट काउंट, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या निकालते हैं? तो इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की एक ये उसकी पीस है, ठीक है। इसका हमें निकालना है कि ये जो पीस है ये किस स्फीयर का है और उस स्फीयर का रेडियस कितना था। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं, ध्यान से देखो, फार्मूला बड़ा ही आसान है। R = L²/6h + h/2। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बाई विच इट्स पीस इज कम आउट। जिस स्फीयर का ये पीस है उसका रेडियस अगर हमें निकालना हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं L²/6h + h/2। L²/6h + h/2 ये फार्मूला। अब इसमें सर ये L क्या है और H क्या है? तो मैं बता दूं कि इन स्फेरोमीटर देयर आर द 3 लेग। इन तीनों लेग की जो डिस्टेंस है बीच की, इसकी जो मीन वैल्यू होगी यही इसका L कहलाएगा। मीन वैल्यू का मतलब इसको निकालना बड़ा ही आसान। हम इसको पहले किसी पेपर शीट पर लगाएंगे और थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये हमारे पास ये 3 डॉट आ गए, 1, 2 और 3। अब इन तीनों डॉट के बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L3। नाउ L1 + L2 + L3/3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? L, मीन वैल्यू L मिलेगा, ठीक है। तो ये निकालना बड़ा ही आसान। तो हम सिंपल स्केल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप स्क्रू गेज का भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छी वैल्यू आएगी। याद रखिए कि दोनों का इंटरनल पार्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा, अंदर का। इस प्रकार से नाउ वी आर एबल टू सी दैट द वैल्यू इज इट्स 4.2, यस 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 cm, 4.20 cm। ये L1 आ गया। ऐसे ही आप L2 L3 भी निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे तो एवरेज वैल्यू लगभग 4 के पास जाएगी, या 4 मान लेते हैं कि 4.20 आता है। तो ये आपका L आ गया। नाउ अब आपको पता करना है H की वैल्यू। ये H की वैल्यू कैसे मिलेगी? L तो मिल गया हमें, R निकालने के लिए L मिल गया यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें H निकालना है। H कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है। पहले हम इस स्पीडोमीटर की जरा देखें तो इस टोटल 4 लेग हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों लेग को पहले हम किसी प्लेन सरफेस पे रखेंगे और ये चेक करेंगे कि चारों लेग बिल्कुल टच में होने चाहिए, और ये टच में देखने से पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम कहीं से एक पेपर शीट निकालेंगे।
और ये देखेंगे कि ये पेपर शीट इन चारों में से कहीं से भी अंदर न जाए। ये अंदर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कहीं से भी ये पेपर शीट अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि इसके चारों लोग बिल्कुल टच में हैं। ठीक, अब हम इसमें इसकी रीडिंग देख लेते हैं, कितनी इसकी रीडिंग है। इसकी रीडिंग देखने का बिल्कुल वही पुराना तरीका स्क्रू गॉज की तरह ही है। ठीक है, कि इसका जीरो बिल्कुल मिडिल में होता है, फिर 10 लाइन्स ऊपर, 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे की कहानी है। तो ये बिल्कुल जीरो पर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ये कितना नीचे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। ये लगभग है 76 पे है, 76। तो 76 का मतलब कितना हो बेटा? 76 में कितना ऐड करेंगे वो 100 हो जाए? यस, सो 24 इन निगेटिव -24 डेसिमल में सेंटीमीटर में, ये इसका एरर है। क्या है ये इसका एरर है, निगेटिव एरर है, क्योंकि निगेटिव नीचे की तरफ हम गए, 100 से नीचे गए हैं ना, तो ये निगेटिव एरर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, याद रखिएगा। इसको हम जो भी ऑब्जर्विंग वैल्यू आएगी उसमें हम इसको ऐड करेंगे। अब हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेंगे, स्फेरिकल पीस है ये, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये एक कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर। ध्यान कर आप देखेंगे कि जो इसका वर्टेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड जो है, कॉन्वेक्स साइड को हम ऊपर रखेंगे और नीचे कॉन्केव साइड है। तो कॉन्वेक्स साइड को हम ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हम इस स्फीयर को रखेंगे। तो पहले तो ये सही आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाकी के 3 छोटे होगा और बीच वाला थोड़ा सी बड़ा माना जाएगा इसमें, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस पर ऊपर है ना, तो हम इस ऊपर वाले को थोड़ा सी ऊपर लेके जाएंगे और कोशिश वही करेंगे ऑब्जर्विंग में। यस, और देखेंगे कि ये पेज अब इसके अंदर न जाए, बिल्कुल नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसकी रीडिंग हम चेक कर लेते हैं। तो इसकी रीडिंग अगर देखें तो ये 0 से ऊपर 1 मिलीमीटर के पास जा रहा है, 1 के थोड़ा सी नीचे है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 44 और 1 के पास है। ठीक है, तो 1.40 इसकी वैल्यू आ रही है। यहाँ से चेक कर सकते हो ना, 0 से ऊपर 1 और यहाँ पर है 44, यानी कि 1.40 इसकी ऑब्जर्विंग रीडिंग है। और इसमें हम ये ऐड कर देंगे, निगेटिव एरर है ना, ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1.64, एम आई राइट, इन सेंटीमीटर। बोलो बेटा। नहीं सॉरी, ये mm में है, ये mm में है, क्योंकि ये वैल्यू mm में थी। नहीं समझे बात? ये जो रीडिंग आ रही है mm में है ना, ये पूरी वैल्यू mm में आ रही है। तो 1.64 mm, ये क्या आया? h आया। क्या आया है? h। और गौर से देखिएगा, सो दिस इज द l। आप ध्यान दीजिए, l सेंटीमीटर में है और h mm में है। तो h की वैल्यू बेटा आपकी आई 1.64 mm और l की वैल्यू आई 4.20 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आप फार्मूले पर रख सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? R=L² प्लस h/2। तो इसमें इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसको जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? 0.164 सेंटीमीटर। ठीक है, तो h भी मिल गया, l भी मिल गया। ये दोनों वैल्यू यहाँ से उठा करके इस फार्मूले पे अगर हम रखेंगे तो हमें r मिल जाएगा। बोलो। नाउ योर प्रैक्टिकल इज ओवर। अब आपको केवल वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, 24 के आसपास कहीं पर सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू जाएगी, सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जिस स्फीयर का कटा हुआ हिस्सा है वो स्फीयर कितना बड़ा होगा आप सोच सकते हो। तो उसका रेडियस कम से कम 24 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसी के आसपास 24 या 20 के पास जाएगी। ये आपका थर्ड, यानी कि थर्ड या कहेंगे फिफ्थ प्रैक्टिकल, लास्ट प्रैक्टिकल। 4 प्रैक्टिकल है और फिफ्थ प्रैक्टिकल है। ये 5 प्रैक्टिकल आपको कई बार करवाए जा चुके हैं, एक बार फिर से मैंने रिपीट किया इसको। ठीक है ना, चलिए फिर मिलेंगे। ओके।